So students, be loud when you are responding and try to tell me if you know something by answering very loud, because I can get the voice here because mic is directly here. So when you are solving a congruency problem, first you should either make the figure may not be given, and if the figure is given, what is the best thing to solve congruency problem is first try to mark equal things by making such symbols that you can make out that these two things are equal. So let us try to go ahead with the problem. So here it is. So now here it is. Let us see. Given in this figure, it is given angle BAD. So BAD is equal to angle ABE. So I will mark this first. These two angles are equal. This you should do. Two curve. Alright. Then angle EPA. So three curve I put. Then angle EPA is equal to angle, now what is there, DPB. Alright. So I have marked three curved. So basically I am planning now. First thing is that mark equal parts in the diagram. Then it is also given P is the midpoint of AB. So P is the midpoint of AB, that means AP will be equal to PB. Now in fact, if I name this as X and this as Y, then these two smaller triangle will be congruent. Can you tell why? If I would have marked this as X and this as Y, these two smaller triangle would have been congruent. Why? Two angles and the included side. Two angles and the included side are equal. So it was basically it can be proved by angle side that these two smaller triangles are congruent. But the question is not that. They are telling proof DAP. That means this triangle is equal to triangle EBP, congruent to triangle EBP. So have a look nicely. There is a common angle over here. If I name this angle as X and then this angle will be X, this as theta, then this will be theta, and this angle if I name as Y, then this whole angle is X plus Y, isn't it? This whole angle is X plus Y, and from this side this whole angle is X plus Y, isn't it? So now you are getting the point what I am telling. In triangle APD, let us try to find out what are the values of the angle. One angle is theta, one angle is X plus Y, and the line AP is 1 dash. Then you go in this triangle EPB. Can you tell me what is the value of this? Theta. What is the value of angle EPB? And what is this is equal to which side? That means, can we say that this triangle is congruent to this triangle? We can say by what? By ASA, angle and side. Two angles and the included side. Are you getting my point? Once more, let us try to, even if you are if you are still not confident, then you take out the triangles. Let us see. I am taking out the triangle. I have pulled it out and I am taking this out. So this is A, which is theta. This is P, which is X plus Y, and this is 1 dash. So this is APD, and then we go this side. Then you can in your rough you can write down once again by trying to be very sure what you are doing. EPB क्या करना है उसे बहुत श्योर होकर देखना. ये एंगल कितना है, एंगल B कितना है? श्योर है? यू टेल मी लाउडली हाउ मच इज इट हियर. कि हम मार्क किया हमने यहाँ पर, बाकी थीटा. फिर ये एंगल कितना आ रहा है? ये पूरा एंगल कितना? X प्लस वाई, और बीच वाला जो है वो क्या है? 1 डैश. अब दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है क्या? अब बोलना आपको खुद, इसमें कितने एंगल्स बराबर है? दोनों ट्रायंगल में कितने एंगल बराबर है? दो एंगल बराबर है. 2 एंगल्स आदित्य. सो और बीच का इंक्लूडेड साइड इक्वल. इसका मतलब किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है? हाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट? ASA. सुनाई दे दिया? ASA. तो अब लिखेंगे कैसे? अब लिखना कैसे ये भी जानना चाहिए. प्रूफ. समझिए केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है. कहां पर प्रूफ कर रहे हैं? वेयर वी आर प्रूविंग इन ट्रायंगल APD and triangle
कहीं पर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो जरूर मार्क कीजिएगा। एंड ट्रायंगल EPB, आपको लगे कि नहीं अल्फ़ाबेट मिस हुआ बताइएगा तुरंत, EPB, ठीक है। यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, APD और EPB। ये आपका रफ फिगर आप पीछे बना सकते हैं, टीचर को ये दिखेगा कि आप ऐसे लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये एंगल A और एंगल B इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो यहाँ दिया हुआ है एंगल BAD गिवन, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन BAD या PAD तो सेम ही है। BAD जो एंगल को बोल रहा है, PAD भी उसी एंगल को तो हम लोग लिख सकते हैं, एंगल PAD इज इक्वल टू, यहां पर क्या दिया हुआ है, ABE या PBE, सेम ही एंगल को सूचित करा है तो PBE। ऑलराइट, ओके, एक तो हो गया। दूसरा हमें क्या लाना है, एंगल APD, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, APD इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी इक्वल एंगल के बराबर है। या आप पहले ही से ले सकते हैं, क्या दिया हुआ EPA इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ EPA, लेट अस सी, EPA इज इक्वल टू DPB गिवन, ये भी गिवन है। इन दोनों में हम कॉमन एंगल जोड़ देते हैं। कौन सा एंगल का नाम लिखेंगे यहां पर, क्या नाम हो जाएगा, EPD। तो दोनों में मैं जोड़ देता हूं, EPA प्लस एंगल EPD, और इधर से एंगल DPB प्लस एंगल EPD जोड़ दिया मैंने। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, देखिए, EPA प्लस EPD बराबर आ गया APD, यहाँ x प्लस वाई APD, और इन दोनों को जोड़ा मैंने DPB प्लस EPD, तो क्या आ गया, EPB x प्लस वाई। तो दो एंगल तो बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर लिख देंगे, है ना। यहां पर क्या है, यूक्लिड अंकल याद आएंगे, इक्वल एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल, इजंट इट। अब एक और क्या चीज कॉमन दिया हुआ, P इज द मिड पॉइंट दिया है, ऑल्सो गिवन AP इज इक्वल टू व्हाट, PB गिवन। तो जब इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब बाई ASA एंगल, साइड एंगल, ट्रायंगल APD या DAP लिख दूं, DAP is congruent to triangle, DAP is congruent to EBP कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हो सकता था आपको और आगे प्रूफ करने के लिए कह देता कि प्रूव दैट AD इज इक्वल टू B, यहां पर दे देता AD इज इक्वल टू B। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर तरह से बराबर है। तो AD जो है किसके सामने वाला साइड है, x प्लस वाई के सामने वाला, और BE किसके सामने वाला साइड है, x प्लस वाई के सामने वाला। यानी ये तो बाई ASA हो गया, और हम लोग लिख सकते हैं यस, AD इज इक्वल टू B बाई CPCT। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यानी अगर मैं इन सॉल्यूशन को मिटा दूंगा तो आप लोग खुद से अब इसको बना लेंगे उस तरह से मार्क करके। तो इस सॉल्यूशन को मैं मिटाता हूं और मैं सर्च करता हूं डस्टर को। सर ब्लू वाली डस्टर आप हमें देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, तो मैं इसको मिटा दूं, पक्का समझ गए ये कौन सा थ्योरम से प्रूफ हुआ, ASA से। तो पहला आपका कॉन्ग्रुएंस, यानी आपको अच्छा रहेगा कि फिगर को निकाल लिया कीजिए। मैंने जान के मार्किंग नहीं की है, कुछ फिगर्स में मार्किंग किया रहता है पहले से। चलिए देखा जाए क्या ये सवाल सही है या गलत है। यहाँ पर देता है ZY इज परपेंडिकुलर ऑन AY, सही है। BY इज परपेंडिकुलर ऑन XY, सही है। और क्या दिया हुआ है, AY इज इक्वल टू ZY, AY इज इक्वल टू ZY, ठीक है भाई, ऑलराइट। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, BY इज इक्वल टू XY, ओके, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू लेट अस सी ZX। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री तो है, ये थीटा है,
तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल 90 प्लस दिस साइड, हाउ मच विल बी दिस एंगल 90 प्लस थीटा. सो वी हैव मार्क्ड एवरीथिंग राइट. नाउ व्हाट वी डू इज, अगर आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट, तो आप पहले प्लान कर दीजिए कि ये 3 डैश, ये 2 डैश और बीच में 90 प्लस थीटा. हमेशा मुंह से बोलिए, व्हाट, हाउ मेनी डैश, 3 dash, 2 dash, 90 plus ओके. नाउ हियर 3 dash, 2 dash, 90 plus. that means they're congruent. All right, ऐसे ऐसे congruent होगा. Ankit sir, you are the chief guest, are you understanding? So what is the formula we are using, what is the congruency theorem here we will use, try to tell. Side angle side. Side angle side. So Ankit is very sure about what he looks at. So let us have a look. यहाँ पर हम लोग फिर से इसको निकाल लेते हैं अलग से, ये फिगर को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर अलग से कि z y, थोड़ा सा स्टाइल में लिखा गया z y और x में यहाँ पर क्या है 2 डैश, यहाँ पर क्या है 3 डैश है. बीच वाला एंगल का वैल्यू कितना है 90 प्लस थीटा. अब मैं इसको निकाल रहा हूँ ऐसे, तो बी वाई ए, तो यहां पर बी वाई 3 डैश है, ए वाई कितना है 2 डैश और ये कितना है 90 प्लस थीटा. अब हम लोग आराम से इस ट्रायंगल को देख के लिखेंगे. तो आपके रफ फिगर में रहेगा, मैंने कहा इसको मेन फिगर में नहीं रखना है, लेकिन हम लोग आराम से इसको हम लोग रफ फिगर में रख इसको देख के लिखेंगे. सबसे पहले मैंने कहा कोर्ट में जैसे केस चलता है वैसे प्रूफ लिखा जाता है. प्रूफ माय लॉर्ड, वेयर व्हाट इज हैपनिंग, साइट बताना है, साइट पर. इन ट्रायंगल आप किसी भी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स, इन ट्रायंगल जेड वाई एक्स एंड ट्रायंगल बी वाई ए, इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज देयर. जेड वाई 2 डैश है तो ए वाई 2 डैश है. जेड वाई इज इक्वल टू ए वाई गिवन, जेड वाई इज इक्वल टू ए वाई गिवन. ऑल राइट, ये दिया हुआ नंबर 1 हो गया. दूसरा हमें क्या आ रहा है, यहाँ पर जेड वाई हो गया, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 3 डैश है, तो इधर क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई. ये भी गिवन है, चेक कर लिया जाए भाई. एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई, ए वाई इज इक्वल टू जेड वाई दिया हुआ. और साथ साथ एंगल जेड वाई एक्स is actually equal to 90 डिग्री प्लस विच एंगल, इसका अब नाम लिखना पड़ेगा. क्या नाम है, ए वाई एक्स इक्वेशन 1. और एंगल जेड वाई एक्स और एंगल बी वाई ए भी फिर से देखिए क्या है, बी वाई ए 90 प्लस एंगल ए वाई एक्स, 90 डिग्री प्लस एंगल ए वाई एक्स. तो 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, दोनों 90 प्लस ए वाई एक्स है. क्या कह सकते हैं आद्या या महावीर, क्या कह सकते हैं इन दोनों एंगल के बारे में. अब जेड वाई एक्स भी 90 प्लस ए वाई एक्स है और बी वाई ए भी 90 प्लस ए वाई एक्स है, यानी दोनों आपस में क्या हैंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. यहाँ फिर यूक्लिड एंगल आ गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओके जेड वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल बी वाई ए फ्रॉम 1 and 2. अब हमको क्या क्या मिल गया फ्रॉम 1 and 2, हमको क्या क्या मिल गया, हमें 2 साइड मिल गया इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड मिल गया इंक्लूडेड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा. अब हम लोग ठीक से लिखेंगे इसको ट्रायंगल. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करें, ए वाई बी, यानी ए वाई बी, या ऊपर से स्टार्ट करते 2 से, जेड वाई एक्स, ट्रायंगल जेड वाई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी इधर 2 के छोर से शुरू किए 90 पर है, 3 के छोर पर है, तो यहाँ पर 2 ए वाई बी बाई वॉट, बाई एस ए एस. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब जेड एक्स इज इक्वल टू ए बी, वही प्रूव करना था, जेड एक्स इज इक्वल टू ए बी, जेड एक्स इज इक्वल टू ए बी. इसको क्या कहते हैं, बाई सी पी सी टी सी
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया। क्या आप लोग इसको देंगे तो कॉन्फिडेंटली बना लीजिएगा, मिटा दूं मैं इसके सॉल्यूशन को, ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इधर क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर हम लोग चलते हैं और इस पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, दुनिया में क्या प्रॉब्लम है। लेट अस हैव अ लुक। तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ AD इज इक्वल टू AE, यानी ये दोनों बराबर है। जैसे ये दोनों बराबर होगा, आपका कॉमन सेंस कहता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो और क्या बराबर हो जाएगा, क्या कहेंगे, बेस एंगल्स। यानी अगर ये एंगल को मैं थीटा ले लूंगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब हमारा दूसरा है BD इज इक्वल टू, इसको 3 डैश इज इक्वल टू EC। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन 2 डैश और 3 डैश तो मिला हुआ है। कौन बच्चा बता सकता है कि एक एंगल भी दोनों में बराबर आ रहा है और क्यों? यस, एंगल ADB is equal to एंगल AEC 180 minus थीटा। वेरी गुड। ये दोनों एंगल चूंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा, तो अगर ये थीटा आया तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये थीटा आया तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब आपको देखिए क्या मिल रहा है, 2 डैश 3 डैश 180 माइनस थीटा, 2 डैश 3 डैश, इन बीच में 180 माइनस थीटा। कैसे कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, बाय SAS। यानी अब इसको हम लोग उसी तरह से अब लिखते समय, दो चीज में प्रॉब्लम होता है बच्चों को लिखते समय। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रूफ में कि आप 180 माइनस थीटा लाते समय क्या करेंगे, इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, सबसे पहले ये लिख लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन AD इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू AE। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED। लेट ईच बी थीटा, लेट ईच बी थीटा, थीटा आप ले लीजिए। नाउ अगेन एंगल ADB विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा, है ना, अगेन एंगल ADB विल बी इक्वल टू एज ADB and ADE are which pair, ADB and are linear pair, linear pair। ऑलराइट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब दूसरा है उसी तरह से चले तो अगेन ऑल्सो एंगल AEC विल बी हाउ मच, 180 माइनस थीटा। वाई, एज एंगल AEC प्लस एंगल AEC प्लस विच एंगल, एंगल AED आर लीनियर पेयर। हो गया। नाउ ये दोनों तो मिल गया, AD इज इक्वल ऑल्सो गिवन, सो इन दोनों 180 माइनस थीटा है, यानी दिस फर्दर इंप्लाइज ADB इज इक्वल टू AEC। ऑलराइट, आर यू फॉलो, बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी हमको अब क्या क्या मिल रहा है, 1 में मिला AD बराबर AE, 2 में मिला ADB इज इक्वल टू AEC, और थर्ड में गिवन क्या है, BD इज इक्वल टू EC। गिवन इन तीनों से, यानी इन तीनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say triangle ADB is congruent to triangle AEC by what, साइड एंगल साइड। काफ़ी आराम से आप समझ गए इसको भी, बाई साइड एंगल साइड। तो जब ये इक्वल हो गया तो आपको और क्या प्रूव करना था, अच्छा ABD इज, अच्छा यहाँ पर हमको ABD इज नहीं लिख के यहाँ पर ADB दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रूव दैट ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू AEC। ठीक है, ऑर्डर वो मेंटेन रखना है, ADB। ऑलराइट, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, ये समझ गए हैं पक्का, कोई दिक्कत नहीं उससे। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब यहां पर है कि हियर ACGF एंड ACFG एंड BCD
BCDE आर स्क्वायर एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री, शायद वो नहीं देने पर भी काम चलेगा। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AD इज इक्वल टू FB, AD इज इक्वल टू FB। इसमें भी आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्क्वायर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब मजेदार बात है कि मैं यहाँ पर शेड भी कर देता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बाय SS, आराम से हो जाएगा बाय SS। लेट अस सी कैसे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्क्वायर का साइड है, इसको हम 3 डैश देते हैं तो ये भी कितना होगा 3 डैश। स्क्वायर के अपोजिट साइड, स्क्वायर के साइड्स तो इक्वल होते हैं, और इस स्क्वायर का साइड को हम अगर 2 डैश लेते हैं या 4 डैश लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 4 डैश। डिड यू अंडरस्टैंड। इस एंगल को हम x मान लेते हैं, तो देखिए तो अपने से बोलिए 3 डैश 90 प्लस x, और ये कितना है 4 डैश। फिर इधर से चलिए 3 डैश 90 प्लस x, और ये कितना है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दुख खत्म, यानी हम उसको निकाल कर यहाँ पर अब लिख रहे हैं। लेट अस सी, मैं उन दोनों ट्रायंगल, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं 4th प्रूफ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैंने उसको निकाल लिया, इस ट्रायंगल को पहले BCF को निकाल लिया मैंने, BCF को मैंने निकाल लिया, BCF। यानी थोड़ा सा प्लान करना पड़ता और कुछ नहीं। FC कितना डैश है वहाँ पर 3 डैश, BC कितना डैश है 4 डैश, ये कितना है 90 प्लस x, ये हो गया। अब मैं ACD को निकाल लेता हूँ। ACD को निकाल लेता हूँ। AC कितना डैश है 3 डैश, CD कितना डैश है 4 डैश, और ये एंगल कितना है 90 प्लस x। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है बच्चों, हाउ टू राइट दिस, तो बहुत सिंपल है। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCF एंड ACD, ट्रायंगल ACD पहले लेके चलते, FC 3 डैश है, FC इज इक्वल टू AC, FC इज इक्वल टू AC, FC इज इक्वल टू AC। अब यहाँ देखेंगे FC इज इक्वल टू AC, क्यों FC AC के बराबर आ गया है, क्यों हो रहा है, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। क्या है, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। आप स्क्वायर का नाम भी लिख सकते थे, सेम स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको BC इज इक्वल टू, BC 4 डैश है, BC इज इक्वल टू AC क्यों आ रहा है, लेट अस सी, सॉरी BC इज इक्वल टू CD क्यों आ रहा है, BC इज इक्वल टू CD क्यों आ रहा है, ये साइड ऑफ द अदर स्क्वायर है ना, बट सेम स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम स्क्वायर का नाम दे देते हैं ACFG, और नेक्स्ट वाला में लिखेंगे BC इज इक्वल टू, क्या हो गया है, BC इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। कौन सा साइड्स है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, नाम क्या है स्क्वायर का, BCDE। ऑल्सो एंगल BCF इज हाउ मच, एंगल BCF इज 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ कॉमन एंगल x नहीं लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस ACB। और उसी तरह से BCF हो गया, यानी BCF और ACD भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ACD क्या हो जाएगा, एंगल ACB है, ठीक, ACB। तो 1 and 2 से थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी BCF इज इक्वल टू ACD। दिस इंप्लाइज दैट, इसके चलते ये आ गया। अब हमको क्या मिल गया, 2 साइड मिल गया, और हमें क्या मिल गया, इंक्लूडेड एंगल। देखिए कौन सा मिला, BCF इज इक्वल टू ACD मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, FB इज इक्वल टू AD। ये कैसे आया है, बाई SAS, तो FB इज इक्वल टू AD। प्रूफ हो गया, सबको क्लियर है, क्लियर कट है, यानी ये सभी को मैं मिटा दूं तो आप खुद से बना लेंगे।
इन चारों सवाल को पहले आप लोग खूब सुंदर से बनाइए। थैंक्स अ लॉट।